Uh, Hello. Am I audible, ma'am? Namaskar. Good morning. Good morning, Pratima Min. Thank you. I hope you had a word with our principal, Dr. Sangeeta Srivastava. हाँ जी जी. Madam, we are situated in Kandivli, and it's a suburb part of Mumbai. I'm very much aware that you are familiar with the entire country as a whole, but still, this is the suburb part, and we are located in Kandivli West, and it's a junior college, and we have a school as well. Yeah. And still, we have a good number of students who are so interested in understanding and knowing more about the philosophy of Gandhi because of so many reasons. But one is our principal, ma'am, Dr. Sangeeta Srivastava. She always promotes such beautiful philosophies and all these wonderful ways to understand life from what Mahatma was used to preach. So Yeah. that's the reason why we always have more, inclination to know more about it. Yeah. और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैडम ये हुआ था कि बाय 1982 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया में ये रिचर्ड एटनबर्ग, मैं थोड़ा फिल्म से कनेक्टेड हूं, मतलब मैं पढ़ा था यहाँ पे, इंग्लिश हूँ, लेकिन फिल्म Okay. से मुझे पसंद है। तो मैंने ये 1982 में, मैं कुछ तभी 11 साल का था, स्कूल से हमको गांधी फिल्म दिखाई थी। अच्छा. हमको खाली टेक्स्ट बुक्स में पता था कि ये फिलोसफी है महात्मा की और इस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन है फॉर जी. स्ट्रगल, लेकिन जी. उस उम्र में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उतनी होती नहीं है। तो हम जब वो फिल्म देखने गए थे, Yes, yes. ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन थी और वो फिल्म में मुझे अभी भी याद है, मैं थिएटर में देख रहे वक्त एक सिचुएशन आता है। मैम, संगीता मैम, यू देयर ना? हेलो Yes, sir. Yes, sir. I'm there. मैम, I very much remember that sequence so far, even now today, कि गांधी जी comes to India from South Africa and he's a big name और उनको रिसीव किया जाता है, and then उनको कहा जाता है कि you start working for Indian National Congress, पर उसके पहले वो कहते हैं कि let me go across India, और वो थर्ड क्लास, तभी रेलवे में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट भी हुआ करते थे, उसमें वो अपने वाइफ के साथ, जो रोहिणी अट्टंगड़ी ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, वो दोनों ट्रेन में ट्रैवल करे और उनका वो इंग्लिश फ्रेंड है, एंड द एंटायर सीक्वेंस गोज अराउंड फॉर मोर देन 5 मिनट्स अप्रॉक्स। वो अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग तरीके से वो देख रहे हैं, डायरी में नोट कर रहे हैं। द सीक्वेंस एंड्स विद, शायद वो यमुना का ब्रिज है, पता नहीं, कोलीवर ऐसा कुछ जगह है जहाँ का वो ब्रिज है। इट्स अ रेलवे ब्रिज ऑन टॉप एंड डाउन बिलो यू कैन वॉक, एंड द ट्रेन इज हॉल्टेड बाय इवनिंग एंड पीपल आर मूविंग अराउंड, और बापू वहां पे नीचे आते हैं और उस पानी में काफी गर्मी का माहौल है, तो ही dips his gamcha and he's getting himself thoda chilled off, and then he can see at far corner a poor lady washing her clothes and she is with the bare necessities, और फिर वो उस कपड़े को पानी में बहा के, I still remember that closing frame of the shot, and that was that little faint smile of humanity. Outstanding film, इस पे हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि इनके बारे में कुछ, ये कुछ अलग है, ये हमको कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम कुछ और रास्ता बता सकते हैं। सो still now that journey is still now, Pratima ma'am, still now I am unable to understand, though I have read lot and I've spoken a lot with people, but still to understand the philosophy, that is so much of subtlety into it. And fortunately, Sangeeta ma'am, Pratima ma'am is highly qualified in this particular field because she is from Delhi University. She did her PG into the same subject, and she is associated with this project for so long कि उनको बहुत साल से she is into it, and I'll ask Pratima ma'am to speak more about her. Good morning, everybody. And actually, I am associated with Gandhian Institution since my childhood. बचपन से ही गांधी संस्था यानी गांधी स्मारक संग्रहालय और गांधी दर्शन, मेरे पिताजी वहीं पर डायरेक्टर थे, तो मेरा जन्म ही गांधीयन संस्था है और मैं वहीं बड़ी हुई हूँ। पिताजी के जो घर से मुझे संस्कार मिले हैं और वही वातावरण राजघाट के सामने, तो फिर बाद में मैं साबरमती आश्रम में आ गई थी। तो मुझे बहुत ही यहाँ पर एक पवित्रता का, एक पॉजिटिविटी का हमेशा अनुभव होता है, और वही वातावरण जो मुझे बचपन में मिला दिल्ली में राजघाट के पास, वही वातावरण मुझे साबरमती आश्रम में भी मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे काम से, और
बहुत मुझे यहाँ पर रहकर आनंद आता है। बापू के सानिध्य में मेरा सौभाग्य है कि मुझे साबरमती आश्रम में भी काम करने का अवसर मिला है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साबरमती आश्रम में। shall I start? Hello. Absolutely, ma'am. Namaste, Absolutely. namaste, ma'am. Before we start, I would just like to inform you कि हम लोग ये आज हमारा तीसरा दिन है जो हम लोग गांधी जयंती का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और फर्स्ट डे पे हमारे साथ रशियन स्कूल सेंट पीटर्सबर्ग में रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल है जो हिंदी स्कूल है वहां का रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग का उसके बच्चे आए थे और उन बच्चों ने बहुत अच्छा गरबा नृत्य करके हमारे साथ इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया था। और सेकंड डे यानी कल हमारे बीच थे राजू पारुलकर सर जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, बहुत ओल्ड पर्सनालिटी एंड ही इज एन एग्जांपल ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। व्हाटएवर गांधी जी के जो विचार हैं उनके वो पूरे एक एक्सपोनेंट कह सकते हैं हम उन्हें। और उनके साथ हमारे बच्चों ने बहुत उनको बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और आज आप हैं हमारे साथ तो मैं अपने सारे बच्चों को ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट टुडे वी हैव श्रीमती प्रतिमा वोरा जी जो स्वयं इस समय साबरमती आश्रम में है। हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि इस समय नहीं जाया जा सकता है बट यस कभी ना कभी तो हम बहुत जल्दी वहां जाएंगे और प्रतिमा जी वहीं पर हैं तो हम फिर जब वहां जाएंगे तो वो हमें फिर से एक अच्छी तरह से वहां का टूर कराएंगे। लेकिन आज जो वर्चुअल टूर है गांधी साबरमती आश्रम का जो कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले आई थिंक 1915 में उसको एस्टेब्लिश किया था और अपना कर्म भूमि बनाया। हाँ वहीं पे उन्होंने अपना ये जो सेल्फ सफिशिएंसी और खुद से अपना काम करना एग्रीकल्चर फार्मिंग काऊ ब्रीडिंग ये सब चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1917 में। और साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ ये साबरमती आश्रम है और आज ये सिंबलाइज करता है ट्रुथ एंड अहिंसा सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया में इसका एक सिंबॉलिक है साबरमती आश्रम। So, ma'am, I hand over to you once again. Welcome, and please take us to the virtual tour. We are eagerly waiting. So much, madam. Is it clear? सब आराम से देख पा रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे से। ठीक है। हाँ तो I'll start from हृदय कुंज गांधी जी का निवास स्थान। अच्छा मैं सामने की साइड करूं तो यस या देखिए ये है साबरमती नदी का किनारा। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में गांधी जी का ये आश्रम स्थित है। साबरमती नदी का किनारा मैं आपको पहले साबरमती नदी ही दिखाती हूँ। ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो 11 किलोमीटर में डेवलप किया हुआ है। बहुत ही सुंदर नजारा और लगभग आश्रम की 35 एकड़ लैंड है तो काफी बड़ा आश्रम है। ये आप देख पा रहे हैं साबरमती रिवर और उसके किनारे पर ही साबरमती आश्रम बसा हुआ है। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे तो एक और आश्रम गांधी जी का यहाँ पर अहमदाबाद में है जिसका नाम कोचरब आश्रम। वो यहाँ से 4 माइल दूर है और 2 साल वहां रहने के बाद वो जीवन लाल बैरिस्टर का घर था और 2 साल वहां रहने के बाद वो ही आश्रम प्लेग की बीमारी फटने के कारण गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे बसाया। तो इस आश्रम के 5 हेरिटेज प्लेस हैं। 102 साल पुराना गांधी जी का आश्रम है। लास्ट कॉटेज है उसको हम नंदिनी निवास कहते हैं। वो अभी जेंट्स गेस्ट जो भी आते थे लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कैलन बेग, पोलाक और सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल तो ज्यादा यहीं रहते थे। तो अभी वहाँ काम चल रहा है रेनोवेशन का तो वो लास्ट कॉटेज है नंदिनी निवास। और हम देख रहे हैं ये विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर। विनोबा भावे जी
जो प्रथम सत्याग्रही का खिताब गांधी जी ने उन्हें कहा था, और विनोबा जी यहाँ रहे 1918 से 1930 तक, 1921 तक, और उनके पवनार जाने के बाद मैडलिन स्लेड, एक एडमिरल की बेटी आई थी ब्रिटेन से, जिनको गांधी जी ने नाम दिया था मीरा बहन। तो मीरा बहन अप टू एंड उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया। हम एंटर करेंगे विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर। सो सिंपल लाइफ वाज देयर। कुछ फर्नीचर भी नहीं हुआ करता था। ये मीरा बहन है गांधी जी के साथ चरखा कताई करते हुए, और कुछ फर्नीचर नहीं हुआ करता था, सिर्फ मैट बिछा के सब नीचे ही सो जाते थे। तो यू कैन सी विनोबा भावे जी, और अलग अलग समय में दोनों इस कॉटेज में रुके थे। अब हम आगे जाएंगे गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज की ओर। ये है हृदय कुंज का नजारा। बहुत ही सुंदर जगह और प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये आश्रम है। तो हृदय कुंज, heart of the ashram, is the residence of Gandhi ji, and 12 years Gandhi ji spent in this residence. काका साहेब कालेलकर ने इस घर का नाम दिया हृदय कुंज। राइट, हृदय कुंज 1918 से 30 तक बापू इसी घर में रहे, और ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है गांधी जी के निवास स्थान का। ये आप एक वरांडा देख सकते हैं। गांधी जी का कोई पर्सनल कमरा नहीं था, यहीं पर बाहर खाना सोना होता था। सो वी विल एंटर गांधी जी रूम। આમ ઉલટું કેમ દેખાય છે? એક મિનિટ, હું બતાવું છું ને તો આમાં ઉલટું દેખાય છે। આજો, अच्छा એવું છે, खोलो न। मैडम बेन हमको बराबर नजर आ रहा है, आप बेफिक्र रहिए। और अच्छा, तो ठीक है। ऐसा आराम लगा से, ये मेरे कैमरे में कैसे नहीं बेफिक्र रहिए मैम, बहुत सही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा ये हैं गांधी जी के मीटिंग रूम में। ये यही बापू बैठते, सब ग्रेट लीडर्स के साथ बैठकर उनकी चर्चा विचारना, और हमारे देश की आजादी की लड़त के कार्यक्रम, आंदोलन, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम, सभी यहाँ से डिसीजंस लिए जाते थे। इसीलिए इसको गांधी जी की कर्म भूमि कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्पिनिंग व्हील विच गांधी जी यूज्ड। गंगा बहन मजूमदार करके एक विधवा बहन के पास से उनको ये वाला चरखा बड़ी मुश्किल से मिला था, और तो हमेशा मीटिंग हो या फ्री टाइम में गांधी जी ये काम किया करते थे 4 से 5 घंटे। सेल्फ रिलायंस एंड टू गिव मोर एंड मोर पीपल एम्प्लॉयमेंट, गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। ये राइटिंग डेस्क उन्होंने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, he started writing from this place. This is the desk, writing desk। 3 मंकी का स्टेचू है जो नीची दासू फ्यूजी गुरुजी, एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे जापान से, उन्होंने बापू को भेंट में दिया था। ये पेन स्टैंड बापू का ओरिजिनल, और ये साइड टेबल है। बापू यहीं बैठते, सबके साथ चर्चा विचारना यहाँ से होती। महादेव भाई देसाई उनके पीए इस डेस्क पर बैठा करते थे। तो आप देख सकते हैं कितना खुलापन है आश्रम में, चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे, खुलापन काफी हुआ करता था। अब हम जाएंगे गांधी कस्तूरबा जी का रूम हुआ करता था अंदर। बापू तो बाहर ही खाते सोते थे। 13 साल की उम्र में, छोटी उम्र में ही गांधी जी और कस्तूरबा जी का विवाह हो गया था। उस समय बिजली भी नहीं थी आश्रम में, और दिस वाज जस्ट द बैरन लैंड। यू कैन सी द रूम, कुछ भी फर्नीचर नहीं हुआ करता था। और कस्तूरबा जी
सभी एक आदर्श पत्नी का उन्होंने उदाहरण सामने रखा समाज के, और अब सभी कार्यक्रमों में बापू का साथ उन्होंने दिया। आगा खान पैलेस पुणे में बापू के साथ बा को भी जेलवास हुआ था, नजर कैद रखे गए थे, वहीं उनका अवसान हो गया था। कस्तूरबा जी और बापू के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और ये एक लास्ट कमरा है जो है गेस्ट रूम फॉर वुमेन, जहां सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर, वो लोग आकर रहते थे और बापू के साथ चर्चा विचारणा होती थी। हाउ गांधी जी बिकेम मोहन टू महात्मा। महात्मा टाइटल दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब important dates and events we have kept one panel। 1915 में हमेशा के लिए वापस आ गए थे और 30 तक का पीरियड अहमदाबाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च, नमक का सत्याग्रह यहाँ से शुरू किया। 80 लोगों के साथ चले, 385 किलोमीटर, 241 miles away from here is the place दांडी। और वहां उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और जाते समय प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। ये किचन हुआ करता था, रसोई घर, you can see here some of the original things we have kept here। Walking stick of Gandhi ji, one of the spinning wheel of that time, and ashes pot, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ चीजें जो डेली लाइफ में गांधी जी यूज करते थे, स्पून है, फॉर्क है। विदेश में उनका काफी समय व्यतीत हुआ तो स्पून और फॉर्क का भी उनको आदत पड़ गया था। ये उनके स्पेक्टिकल्स हैं, वुडन सैंडल्स हैं, बाउल। एंड यरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट उन्होंने यूज किया था। पानी का मटका रखने का ये स्टैंड हुआ करता, वेल में से पानी निकालकर पानी के मटके रखे जाते थे। ये बाहर का व्यू है हृदय कुंज के सामने। कल गांधी जयंती था तो यहाँ हृदय कुंज में सब धर्म के गुरु हमारे यहाँ आते हैं और सर्व धर्म प्रार्थना होती है। शाम को कश्मीरी भाषा में वैष्णव जन तो तेने कहिए, उन्होंने उसका अनुवाद हुआ था और वो भजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम था। कल पूरा दिन बहुत ही सुंदर आश्रम में वातावरण रहा। बहुत लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं और बापू को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अब हम आगे जाएंगे प्रार्थना भूमि की ओर। सर्वधर्म प्रार्थना गांधी जी सबके साथ किया करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताओ प्रार्थना, वैदिक प्रार्थना, बौद्ध प्रार्थना, जैन प्रार्थना, सब धर्मों की प्रार्थना यहाँ पर खुले में बापू सबके साथ किया करते थे। प्रकृति के 5 तत्वों के साथ उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता था। ये प्रार्थना भूमि जहाँ से उनको एक आत्मबल और एक आत्म परीक्षण में सत्याग्रह आश्रम नाम जो गांधी जी ने दिया था वो उपासना भूमि ये है। सीधा साबरमती नदी का किनारा हम आगे देखेंगे। और प्रार्थना गवाते थे मोरेश्वर खरे जी। मैडम, हाँ। प्रतिमा मैडम, हाँ जी। आप बीच में पानी पीजिएगा, बैठिएगा, ऐसा आप आराम से, क्योंकि मुझे मतलब आप बहुत है काफी बात, क्योंकि तो ये आराम से पानी भी बहुत पिएगा, हमको हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वी आर एट आश्रम योर है प्लेजर। वो। हाँ, चल के बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सब क्लियर है ना, सही से सुनाई पड़ रहा है? एब्सोल्युटली मैम, बहुत ही बढ़िया। मतलब हम लोग Okay. ऐसा लग रहा है कि हम वहीं पे हैं मैडम, प्लीज। ओह यस, थैंक यू। ये है साबरमती नदी का घाट। यहाँ 2 घाट हुआ करते थे आश्रम के, एक जेंट्स लोगों के लिए, एक लेडीज के लिए। तो मोदी जी जो भी डिग्निटरीज के साथ यहाँ पर आते हैं, जैसे नेतन्याहू आए, शिंजो आबे आए, जिनपिंग जी आए, लास्ट ईयर ही ट्रम्प साहब आए थे,
देन जस्टिन ट्रूडो जी आए, तो सभी के साथ यहाँ पर बैठकर उनको ये साबरमती नदी का दर्शन कराते हैं और आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं बापू को। तो ये वही जगह है। नाउ हम आगे जाएंगे मगन निवास की ओर। मगन भाई गांधी गांधी जी के भतीजे थे जो आश्रम चलाते थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के साथ काम किया था। तो ये है, बाहर से दिखाते हैं हम मगन निवास। बहुत ही कुशल कारीगर भी थे और बहुत ही अच्छे से आश्रम को चलाते थे। 400-500 लोग यहाँ पर रहते थे। तो मगन भाई गांधी आश्रम का संचालन करते थे। ये है मगन भाई गांधी का फोटो। तो 100 साल पूरे हुए हमारे आश्रम को। देखिए, एक स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ देखने के लिए। कौन सी स्कूल से आए हैं बेटे? हाँ, पीटीसी कॉलेज के बच्चे हैं। वो आश्रम के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, ये 1924 का एक बहुत पुराना है, जिन्होंने कमल अम्मा जी का चरखा है, जिन्होंने गांधी जी के साथ सबसे महीन धागा निकाला था। तो ये उनका चरखा है 1924 का। और 100 साल हमारे आश्रम को पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में हमने मगन निवास में चरखे के अलग अलग मॉडल्स का एग्जीबिशन लगाया है। यू कैन सी हियर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्पिनिंग व्हील। अरे भाई, તમે આ કેમેરો પકડો ને, તો હું આ પ્રેક્ટિકલી बताऊं। 1-2 मिनट इसको पकड़ तो मैं अच्छा, मैं आपको चरखा चला के दिखाती हूँ कि कैसे रुई बनता है। इसको पकड़ के रखो, मैं बनाऊं ना तो ये दिखाना, ठीक है? ये देखिए, ये है पोर्टेबल चरखा, दिख रहा है उसमें? ये कॉटन रहता है, कॉटन से कैसे धागा बनता है। तो स्पिंडल में थोड़ा धागा लगाकर जब हम इसको घुमाते हैं तो रुई में से धागा बनता जाता है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने रखा, ये घुमाएंगे तो इसके जो फाइबर्स है रुई के, उसको पकड़ता रहता है, इसीलिए धागा बनता है। ये देखिए, कॉटन से थ्रेड बना, तो हमने से होल्ड करके ट्विस्ट कर दिया, तो इतना बना हुआ धागा पक्का भी हो गया। अब फिर हम इसको स्पिंडल में जमा करेंगे। इस तरह से धागा बनाते थे गांधी जी। और स्वदेशी, हम विदेश की कोई भी चीज को यूज करें और इससे जो कपड़ा तैयार होता है उसको कहते हैं खादी या खादी क्लॉथ। ठीक है, इस तरह की आटी बनती है और वो हैंडलूम में लगता है तो कपड़ा बन जाता है खादी का। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया रुई में से कैसे धागा बनता है। इसको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यरवड़ा चरखा भी इसलिए कहते हैं कि यरवड़ा जेल में थे गांधी जी, तब उन्होंने इस तरह का चरखा चलाया था। और ये अलग अलग सब टाइप के चरखे के मॉडल्स हमने, दिस इज द बुक चरखा। तो स्मॉल चरखा है, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। पंजाब में इस तरह के चरखे चलते हैं, तो यू कैन सी हियर पंजाब का चरखा। और ये है राजस्थान का चरखा। तो इस तरह के मॉडल्स जो है वो राजस्थान में चलते हैं। गांधी जी की डेथ के बाद थोड़े मॉडर्न चरखे बने, जिसको कहते हैं अंबर चरखा, विच हैज मल्टी स्पिंडल्स। तो ऊपर रुई लगी रहती है और नीचे उसका धागा बन जाता है। तो इस तरह से ये हमने एकांबर नाथ करके एक साउथ के भाई ने इसे डेवलप किया था, तो इसको कहते हैं अंबर चरखा। उसके मॉडल्स भी हमने यहाँ पर रखे हैं। जैसे हम घुमाएंगे तो घूमने से ही नीचे की साइड जो है धागा तैयार होगा। मल्टी टाइम्स वी कैन गेट थ्रेड, तो मोर एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग। ये देखिए, ये है
अम्बरसर था। ठीक है, तो ये मगन निवास में हमने एग्जीबिशन लगाया है पूरा। आप जब भी समय मिले आप यहाँ पर पर्सनली जरूर इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जरूर आएंगे मैडम, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू। हाँ बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एग्जीबिशन है और बहुत मीनिंगफुल एग्जीबिशन है। Yeah. Now we will move towards the museum. अच्छा, मैडम मैं museum रिक्वेस्ट में करूंगा आप थोड़ा पानी पी लीजिए मैडम, मुझे ही बड़ा, आप प्लीज बिल्कुल, प्लीज जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एटलीस्ट, प्लीज सिट डाउन फॉर अ मिनट है। और आप पानी 2 मिनट कोई पी लीजिए मैम, कोई मुझे आप प्रॉब्लम इतना नहीं है, आप मैं प्लीज। आराम से बोल पा रही हूँ। और बस आगे जा रही हूँ तो वो पानी की व्यवस्था है, मैं थोड़ा सा पी लूंगी हाँ हाँ और प्लीज फिर हम प्लीज। आगे म्यूजियम बताएंगे आपको। श्योर यू श्योर, कैन सी थैंक यू। नेचुरल एनवायरनमेंट, सो ब्यूटीफुल, यस सो मैम एब्सोल्युटली। ग्रीनरी, यस, इन द आश्रम। थोड़ा सा पानी पी ले फिर हम आगे चलते हैं। मैडम आप प्लीज आराम से पानी पीजिएगा, हम हाँ, मतलब कोई बात हाँ। तो म्यूजियम बना 1963 में। ये म्यूजियम का एक व्यू है और हमारे तब के प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। वाह। तो एक हमने वेबसाइट का भी काम यहाँ पर शुरू किया है जिसका नाम है गांधी हेरिटेज पोर्टल .org। ओहो। So you can get each and every digitally. We have uploaded more than 25,000 pages. तो वो आप उसमें देख पाएंगे गांधी हेरिटेज पोर्टल। ये एक बहुत ही सुंदर कॉटन से बनाया हुआ गांधी जी का ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है। यू कैन सी इतना सुंदर। एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया गांधी जी ने जिसका नाम है गुजरात विद्यापीठ। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया था जो इनकम टैक्स से पास में है। तो 3 जो संस्था है गांधी जी की वो अहमदाबाद में, गुजरात विद्यापीठ, कोचरब आश्रम और साबरमती आश्रम। वाह। ये एक गैलरी हमने बनाया है म्यूजियम में। गांधी जी 15 साल अहमदाबाद में रहे उसका। तो ये एक डांडी मार्च का बहुत सुंदर एक हमने मॉडल बनाया है। गांधी जी चपटी मीठू उठाकर और उन्होंने नमक का कानून तोड़ा 1930 में। साबरमती आश्रम से चले थे 385 किलोमीटर, 241 माइल जो रूट बताया है। तो 25 दिन वो यात्रा चला और साउथ ऑफ गुजरात नवसारी के पास डांडी होता है, वहां उनका ये आंदोलन पूरा हुआ और धरासना फिर उनको जेलवास हुआ, धरपकड़ हुई। यू कैन सी हियर, ये अहमदाबाद का एलिस ब्रिज, लकड़िया पुल बोलते हैं। तो गांधी जी को सुनने के लिए दांडी यात्रा के दौरान लाखों लोग जुड़े और बहुत सफल वो आंदोलन रहा। और अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने काफी सत्याग्रह का आयोजन यहाँ से किया था। जैसे यहाँ से गए चौरी चौरा कांड हुआ, यस यस मैम। कोहाट में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए थे, तो गांधी जी ने उपवास रखकर वो दंगे शांत किए। अहिंसा का मार्ग, सत्याग्रह का मार्ग चुनकर उन्होंने सभी आंदोलनों में सफलता पाई और हमारे देश को आजादी मिली। वाईकॉम सत्याग्रह, वाईकॉम सत्याग्रह में हरिजन को प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो गांधी जी ने सत्याग्रह करके और मंदिर में प्रवेश दिलवाया। हरिजनों को भी समान हक मिलना चाहिए, समाज में इक्वालिटी, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये है विदेशी कपड़ों की होली जलाई, स्वदेशी वस्त्र सामने रखा, खादी। तो ये पुराना माणक चौक है जहां पर विदेशी कपड़ों की गांधी जी ने होली जलाई। यहाँ भारत आने के बाद पहला आंदोलन गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। यस यस मैम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था और 100 साल पुरानी 3 कठिया पद्धति उसका अंत हुआ फिर। और गांधी जी 1 साल वहां रहने के बाद
1918 से 1930 साबरमती आश्रम में रहे। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया, उसका एक फोटो लगाया है। और 2 पत्रिकाएं उन्होंने यहाँ से शुरू किया था, यंग इंडिया और Yes, yes. जिनके माध्यम से लोगों को अच्छे विचार और एक प्रेरणा मिलती थी, अवेयरनेस आती थी, तो वो पत्रिकाएं गांधी जी ने यहाँ से शुरू किया था। स्पिनिंग, वीविंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, he promoted many cottage industries, Yes, yes, ma'am. plantation, animal husbandry। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले वो चाहते थे। और एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लगाया है, जो लैंड गांधी जी के नाम पर खरीदा गया था। पहले एक छोटा ही टुकड़ा खरीदा था, फिर धीरे धीरे आश्रम एक्सपांड हुआ। ये पहला आश्रम कोचरब आश्रम का फोटो है, जहां गांधी जी 2 साल रहे। ऑलरेडी 20 पर्सन्स केम विद हिम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और ये कोचरब आश्रम में गांधी जी 2 साल रहे, 1915 से 1917 तक। गांधी जी के राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बापू को सलाह दिया था कि आप थोड़ा टाइम भारत भर की परिस्थिति की जानकारी लीजिए और फिर आपको जो भारत देश के लिए करना है वो कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, श्रद्धानंद जी के आश्रम में थोड़ा टाइम रुके और फिर अहमदाबाद में उन्होंने अपना मुकाम बनाया। भारत आने के बाद 1915 में ट्रेडिशनल ड्रेस में गांधी जी, काठियावाड़ी ड्रेस, बा और बापू, तब 46 इयर्स के थे बापू। यू कैन सी हियर 46 इयर्स के बा और बापू। Yes, yes, ma'am. जी, गांधी जी के साथ जिन जिन महानुभावों ने साथ सहयोग और अनुदान दिया, तो उनके हमने एक पैनल लगाया है। मगन भाई गांधी, काका साहेब कालेलकर, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी का लैंड सेवाग्राम आश्रम, जो लास्ट आश्रम गांधी जी ने बनाया, वो जमनालाल बजाज जी ने इनवाइट किया था गांधी जी को, और उन्होंने यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया। वर्धा, नागपुर से 40 किलोमीटर दूर होता है वर्धा गांव, वो जमनालाल बजाज जी का वो लैंड हुआ करता था। किशोरीलाल मशरूवाला, नरहरि परीख, ये है मेडलिन स्लेट, जिन्होंने रोमा रोला की किताब एक पढ़ने के बाद गांधी जी के साथ अप टू एंड काम किया और सेवा के काम किए, वो मीरा बहन। महादेव भाई देसाई, जी, गांधी जी के पीए महादेव भाई देसाई, विनोबा भावे जी, प्यारेलाल जी और मोरेश्वर खरे, जिन्होंने आश्रम भजनावली भी लिखा था। यू कैन सी हियर हृदय कुंज का पुराना 1918 का एक फोटो है, आप देख सकते हैं। वही स्ट्रक्चर है जो आज भी उसी स्थिति में करके रखा है। हृदय कुंज, अंबालाल साराभाई, मंगलदास सेठ, सभी लोगों ने गांधी जी को मदद किया था और उन्होंने आश्रम की स्थापना यहाँ पर किया था। ये है हरिजन फैमिली की बेटी लक्ष्मी, जिनको गांधी जी ने अपनी बेटी बनाया। और हरिजन फैमिली, उनके पिताजी, माताजी, दूधा भाई और दानी बहन को उन्होंने आश्रम में स्थान दिया। बहुत विरोध हुआ उस समय, जाति पाति का बहुत भेदभाव हुआ करता था, लेकिन गांधी जी ने सबकी उन हरिजन को अपने आश्रम में स्थान दिया और दृढ़ निश्चय करके भी उन्होंने वो काम, समाज में समानता का नियम आया। और ये आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी, जिन जिन लोगों ने, महानुभावों ने हमारे आश्रम का विजिट किया, उनके फोटोज लगाए हैं। अब्दुल कलाम जी, चाइना के, मोदी जी, उन्होंने चरखे का एक्सपीरियंस लिया। सुनीता विलियम्स जी, प्रतिभा पाटिल, मार्टिन लूथर किंग, जॉन केरी, बान की मून, सभी लोगों ने, हाँ जी, बान की मून, यस, जनरल सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन। यस यस यस। और एक पिक्चर गैलरी हमने यहाँ एक म्यूजियम में बनाया है, 7 लाइफ साइज पेंटिंग्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। फादर ऑफ आवर नेशन, यू कैन सी,
बहुत सुंदर हरिलाल खत्री और चंदूलाल शाह जी के पेंटिंग्स हैं। प्रेज गॉड, गांधी जी मेडिटेशन में बैठे हुए, चरखा चलाते हुए बापू। मास प्रोडक्शन नहीं चाहते थे, प्रोडक्शन बाय मास, डिसेंट्रलाइजेशन, सो ही स्टार्टेड चरखा मूवमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया। ये बापू दांडी यात्रा के लिए जाते हुए 80 पर्सन्स के साथ यहाँ से चले थे 241 माइल्स। दक्षिण अफ्रीका का एक फोटो है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इक्वालिटी। ये देखिए इंटरकास्ट मैरिज गांधी जी आश्रम में करवाते हुए, तो उन्होंने, ये एक बहुत सुंदर पेंटिंग है। सत्य और अहिंसा के संदेश देते हुए बापू। लास्ट उपवास जो उन्होंने दिल्ली में रखा 18 तारीख को, पहले जनवरी की, और 30 तारीख को तो बापू का अवसान हो गया था। तो ये लास्ट उपवास गांधी जी ने जो दिल्ली में रखा उसका पायना करते हुए। और ये है पेंटिंग सभी ग्रेट लीडर्स के साथ हरिजन कॉलोनी में जाते हुए बापू। खान अब्दुल गफ्फार खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आजाद जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी ग्रेट लीडर्स के साथ हरिजन कॉलोनी में जाते हुए गांधी बापू। तो ये पिक्चर गैलरी हुई और म्यूजियम में हमने कुछ पैनल्स लगाए हैं, प्रोफेट्स ऑफ जेंटलनेस। तो सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट दे से अबाउट गांधी जी। सभी को मालूम है आइंस्टाइन ने कितना सुंदर एक बापू के लिए लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास भी ना करें कि एक ऐसे मनुष्य ने कभी धरती पर जन्म लिया था। तो इस तरह से सभी ग्रेट लीडर्स के थॉट्स और गांधी जी के विषय में विचार, मार्टिन लूथर किंग वगैरह, हेनरी थोरो, गिलबर्ट मरे, अल्बर्ट श्वाइजर, टॉल्स्टॉय, सभी लोगों के विचार। हाउ गांधी जी चेंज ऑफ थिंकिंग एंड चेंज ऑफ लाइफ। तो 7 साल के थे बापू, तब से उनके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आए उसका हमने एक पैनल बनाया है, वो देख सकते हैं आप। उनकी भारत की गरीबी देखकर उन्होंने अपना उपली वस्त्र भी छोड़ दिया था, उसका एक फोटो है। और अंत में 1947 गांधी जी बच्चों के साथ बापू गम्मत करते थे। देखिए आप, हंसता हुआ बापू का कितना सुंदर एक पिक्चर है। यू कैन सी हियर, छोटी इंदिरा गांधी जी हैं, बहुत फेमस एक ये फोटो है। बहुत फेमस, हाँ यस मैम, बहुत फेमस फोटोग्राफी है। ये है इंदिरा गांधी जी, और उनके पौत्र हैं कन्नू गांधी, गांधी जी के साथ। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, आज संडे होने के कारण वो बंद है, और 50,000 से भी ज्यादा बुक्स हमने लाइब्रेरी में रखे हैं। रिसर्च वर्क होता है और सब कंसल्टिंग के लिए लाइब्रेरी बनाई है। ये म्यूजियम आपने देखा, और कुछ पत्र हमने यहाँ पर रखे हैं। लोग सिर्फ लिखते थे गांधी जी जहां हो वहां, तो उनको पत्र मिल जाता था। एंड सिर्फ लिखते थे महात्मा गांधी, तो जहां भी होते थे उनको लेटर मिल जाता था। तो हमने एक बोर्ड बनाया है यहाँ पर, गांधी जी अनयूजुअल पोस्टल एड्रेसेस, यू कैन सी हियर। सिर्फ फोटो लगाया है तो भी उनको पत्र मिल गया। एंड यस, मेकिंग ऑफ इंडिया, तो इतना लिखते थे और गांधी जी को लेटर मिल जाता था। गांधी जी जहां हो वहां, ये देखिए पत्र पर सिर्फ इतना ही लिखते थे, गांधी जी जहां हो वहां, तो उनको लेटर जी। और ये एक बहुत सुंदर कोट है जो बापू ने लिखा था, मैं अपने घर को चारों ओर से दीवारों से घेर नहीं लेना चाहता और ना खिड़कियों को बंद रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियां
मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकें। अलबत्ता मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि उनके तेज झोंके मेरे पांव ही उखाड़ दें। मोहनदास करमचंद गांधी। इतना सुंदर कोट है जो हमने यहाँ एक पैनल। Beautiful. So beautiful. अब हम सीधा जाएंगे, वहां हमारा सोविनियर शॉप है, बुक स्टोर है और खादी का स्टोर है। तो बहुत लोग जो भी विजिटर्स आते हैं बहुत पसंद करते हैं और यहाँ से लेते हैं। हमारे पास आर्काइव्स भी है जहाँ लार्जेस्ट कलेक्शन है गांधी जी के लेटर्स का। वी हैव 34,000, मोर देन 34,000 लेटर्स ऑफ गांधी जी। ओरिजिनल हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ कपड़े जो उन्होंने बनाए वो आप गांधी हेरिटेज पोर्टल.org उसमें आप देख पाएंगे। और वो आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सो मैंने आपको वर्चुअल टूर दिया गांधी आश्रम का। ये एक पैसेज है और हमारे ग्राउंड है जहाँ पर गांधी जी का एक स्टैचू लगाया है। जो भी डिग्निटरीज आते हैं वो बापू को सूत की माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। वो हम आपको दिखाते हैं। ये है बापू का स्टैचू। देखिए, आप नजारा देख सकते हैं, कितना सुंदर आश्रम का व्यू है। और ये है बापू का स्टैचू जहाँ सभी ग्रेट लीडर्स आकर यहाँ पर बापू को माला अर्पण करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। यस यस। ये पंच धातु का बना हुआ गांधी जी का स्टैचू है। एंड दिस इज रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर। ये हमने आपको वर्चुअल टूर पूरा दिखाया गांधी आश्रम का। अब आपको आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ भी आपको प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। हम वापस हृदय कुंज ही जा रहे हैं और वहां बैठकर हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मैडम, आपने मेरे प्रश्न का पहले ही जवाब दे दिया। मैं पहला यही प्रश्न पूछने वाला था कि आपको बहुत अच्छी जगह कोई बैठने के लिए, तो पहले आप बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए और फिर हम, ये मेरा सबसे पहले सवाल है। सो प्लीज। तो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह हृदय कुंज ही है। मैं वहीं पर बैठती हूँ, ऐसे भी वही मेरा स्थान है और मैं वहां बैठती हूँ। और आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हैं जरूर पूछ सकते हैं। और जब भी आप समय आप लोगों को मिले जरूर साबरमती आश्रम का विजिट लीजिए। एक अनुभव, एक पॉजिटिविटी और एक वाइब्रेशन जरूर से आप फील कर पाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। यस मैम, पहले आप बैठ जाइए मैम। हम आप प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू जी मैम, दिस टूर वाज इतना एक्साइटिंग और इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसा लग रहा है कि बस हमें पहला काम यही करना चाहिए कि वहां आना चाहिए और खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट वाज सो नाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। काफी विजिटर्स आते हैं, तो आप लोग भी समय मिले, अवसर मिले, जरूर से पधारिए। ठीक है, समय निकाल के आएंगे। बिकॉज बिल्कुल मैं एक बात, ये तो हम देख रहे हैं कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे आपका कितना इन्फ्लुएंस है। मतलब आप जो तन्मय, मुझे भी काय शब्द नहीं है मैडम, आपका जो डेडिकेशन था ना, वो हम लोगों को यहाँ उसके वाइब्स मिल रहे थे। मैं ये सच कह रहा हूँ मैडम। वो हृदय कुंज में आप बैठे, लेकिन आपने हमारे हृदय में राज किया। आपने जो डेडिकेशन से आप बता रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं नजदीक होता ना मैडम, तो पहले मैं आपको बोलता बैठ जाइए, पानी पीजिए और 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए। बिकॉज आपका एनर्जी लेवल हमको यहाँ पे उतना, वो पॉजिटिव वाइब्स। तो सबसे पहले हम सब की तरफ से मैं आपके चरण स्पर्श करके कहता हूँ कि दिस इज समथिंग ओनली पॉसिबल बिकॉज यू आर इन द विसिनिटी ऑफ दिस स्पिरिचुअल सेंस ऑफ महात्मा। दैट्स द ओनली रीजन। दैट्स द ओनली रीजन मैम। यस, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वर्चुअल टूर देकर। और हमारा ये काम ही है कि हम गांधी जी के विचारों का प्रचार करें या उनके बारे में अच्छी बातें बच्चों को भी हम सुनाएं, तो कुछ चेंजेस जरूर से उनके जीवन में भी अच्छे विचार का संचार होगा। बोलिए। अच्छा, अभी बाकी किसी को प्रश्न पूछने तो पूछने दीजिए। जरूर पूछिए। हाँ, प्लीज रेज योर हैंड्स दोस हु हैव टू टॉक और शेयर एनीथिंग दैट दे वांट टू, प्लीज। मैम, जब हम वहां पे आना चाहें तो आप मतलब वहां पे
स्टूडेंट्स को रहने के लिए वगैरह कोई हमको कोई मतलब ऐसे लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह का कुछ होगा? वो आश्रम में व्यवस्था नहीं है, आपको हाँ। यहाँ या तो होटल या कोई धर्मशाला या फिर एक त्रिमंदिर करके है SG हाईवे पर, वहां Okay. पर रहने की व्यवस्था है। एक्सक्यूज मी Sure, मैडम, sure. बैठना नहीं है, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ थैंक यू हाँ, मैडम, तो थैंक यू। वहाँ आप बच्चों को वहां पर रुक सकते हैं बच्चे लोग। श्योर मैम, श्योर। आप ऐसे कितने टूर्स कराते हैं मैडम आप दिन में? मतलब आपके कल तो बहुत हेक्टिक रहा होगा ना, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि 2 तारीख को तो हम हेक्टिक। संगीता मैम, हाँ संगीता मैम, हेलो Yes sir. मैम। यस्टरडे मैम वाज बिजी थ्रू आउट द डे। हमने जब डिसाइड किया सेकंड, तो शी सेड सेकंड इज नो इश्यूज बट आई एम सो हेल्ड अप। आई सेड नो, देन वी डोंट वांट बिकॉज़ वी वांट यू, एंड शी वाज थ्रू आउट द डे टिल इवनिंग। मैंने कल उनसे इवनिंग, लेट इवनिंग में बात किया, देन टू शी वाज बिजी। एंड टुडे दैट सेम एनर्जी। मैडम ये एनर्जी आप लाते कहां से, ये पहले बताइए। ये शायद आप जहां पे हो वहीं का असर है, तो हम जरूर वहां पे आना चाहेंगे। मैम प्लीज, संगीता मैम, एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? एक्चुअल में आज भादरवा वद बारस, जिसको रेंटिया बारस भी कहते हैं, यानी उस दिन गांधी जी का तिथि के हिसाब से जन्मदिन है। तो कल तो 2 अक्टूबर के हिसाब से था ही था, आज भी गांधी जी का जन्मदिन है। अरे क्या बात है मैडम। जी So तो Wonderful, wonderful. हाँ, भादरवा वद बारस जो तिथि के हिसाब से गांधी Yes, जी ma'am. का बर्थ Yes, इस yes, दिन yes. हुआ। जी, ऐसे लास्ट ईयर हमने चरखा डे सेलिब्रेट भी किया था। तो सामूहिक कताई काम, सभी लोग जिनको जिनको चरखा आता है और जो भी स्कूल्स के बच्चे भी आए थे, तो हमने चरखा डे भी सेलिब्रेट किया था। इस बार पॉसिबल नहीं था, थोड़ा कोरोना के हिसाब से, और Yes, ma'am. हाँ तो इस बार नहीं हुआ, लेकिन हम ये ऐसे कुछ भी ट्राई करते रहते हैं। जी बताइए। Sangeeta ma'am or anyone else wants to say something, हाँ ask or anything? हमारे बीच मुंबई यूनिवर्सिटी की एक्स प्रोफेसर डॉक्टर इंदु गर्ग हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है गर्ग मैम, तो आप प्लीज पूछिए मैम को। मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने एक एक चीज इतनी अच्छी समझाई, और इतना जो वर्चुअल टूर दिया है, मेरा तो मन अभी से है कि एक बारी वहाँ अपने जीवन काल में जरूर जाके देखना चाहिए। जरूर जरूर अवसर लेकर, और मैं शायद किसी का इंतजार भी ना करूं, मैं हाँ। अकेले ही आऊंगी और आपसे आपके दर्शन करूंगी और पूरे आश्रम को। जी, केंद्र बिंदु रहा, सभी को यहाँ एक्चुअल में दर्शन करने आना ही चाहिए। और जरूर आप लोग जरूर पधारिए, हम लोग यही हैं, आपको जरूर स्वागत करेंगे आपका, और फिर से बताएंगे साबरमती आश्रम, आप जरूर से पधारिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Lily madam, you're there? Lily madam? हाँ जी मैम, हमारे बीच और लिली मैडम भी है, लिली रोजारियो, प्लीज मैम। Yes, I just saw that. Yes, sir, I'm there. Good afternoon, good morning, sir. Yes ma'am, we are happy. Good morning lady ma'am. Good morning. I just on the video. Hello, good morning. Hello ma'am. मॉर्निंग, Hi, वेलकम। sir. Good Yes. morning, ma'am. Ma'am, it was so wonderful to see the Sabarmati Ashram. For me, it was amazing feeling to see all around, because I have never been there. I've never heard so much about it. Got a lot of inspirations from you, and Thank you, thank you. for me, I feel like I should visit Gandhiji's place, and Definitely. you have really inspired us, ma'am. Really inspired us. All welcome and most welcome to Gandhi Ashram. I am very happy. I will be definitely happy to see you all here. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful tour around the ashram, madam. Thank you so much. And Yes. Samir sir, it was such a wonderful opportunity for us that you have given, because we were able to experience this. Like it was like a life experience. Thank you, ma'am. Thank you, sir. फीलिंग है, एंड वो वाइब्रेशन और फीलिंग आप यहाँ पर आकर जरूर से फील कर पाएंगे। आई थिंक सो। Of course, ma'am. Of course, definitely. Thank you, ma'am.
I want to thank you so much, ma'am. Thank you so much. And Samir, Okay. sir, thank you so much for Thank you. giving us this opportunity. Okay, fine. Thank you. Yes, thank you. Uh, समीर, हाँ, समीर भाई, हाँ. आपने मैडम, देखा, मैं आपने एक भी बार विजिट नहीं किया साबरमती आश्रम का? ये आज मुझे इतनी गिल्ट फील हो रही है कि मैं अभी तक क्यों नहीं जा पाया, और आज आपने जो दिखाया ना, उसके बाद तो मैं आपको क्या? कहता हूँ विद इन ईयर और सो में मैं जरूर आऊंगा, और हम सब आएंगे, क्योंकि सच कहूँ तो हमने कम लोगों ने विजिट किया था, मतलब मैंने तो विजिट नहीं किया था, अभी लिली मैम ने कहा, वैसे बहुत से लोग हैं। आपने जो हमको विजिट तो करवा ही दिया, लेकिन वाइब्रेशन से जो आपने हमको जो किया है ना, Yes, yes, sir. हमारी जिंदगी में जब भी You all are most welcome. Yes, yes, sir. यस मैम, नहीं मैम, वो हम फील कर रहे हैं दैट पॉजिटिविटी व्हाट यू जी, गिव जी, अस इज देयर। संगीता मैम, यू वांट टू से समथिंग? हाँ. मैम ने एक बात जो बताई कि सर आइंस्टाइन ने जो वहाँ पे लिखा है कि कुछ आने वाली पीढ़ियां ये चीजें शायद बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि कोई दुनिया में एक रियल पर्सन ऐसा था गांधी जी जैसा, जो आइंस्टाइन ने बहुत ही सुंदर एक कोट दिया, जो बिलीव कर पाएगा कि इस तरह की थिंकिंग, इस तरह के थॉट्स और आचार व्यवहार विचार सब ऐसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन में हो सकते हैं। और ये बात मैम मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि ये शुरू हो गई है, ये ट्रेंड चालू हो गया है, और मे बी विद इन 50 इयर्स तो सच में लोग बिलीव नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी सच में महात्मा कैसे थे और क्यों हम उन्हें महात्मा कहते हैं। सो बिफोर भी हमारी एजुकेटर्स की ड्यूटी है कि इस ट्रेंड को रिवर्स करे और लोगों को तक असली बात पहुंचाई जाए कि गांधी जी का एक्चुअल व्हाट वाज ही, वो किस तरह के पर्सन थे और उन्होंने क्या किया, क्या चेंजेस लाया सबके थॉट में। सो विल डेफिनेटली डू इट एंड विल बिगिन विद, हम अपने स्टेप करेंगे। गांधी जी भी कहते थे बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लो और अपने यहाँ से शुरू करो, अपने वहां से शुरू करो। एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर, हम अपने पास से शुरू करेंगे, खुद से शुरू होना चाहिए, वही खुद से शुरू करेंगे, हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे, हम पहले खुद करेंगे। एग्जाम्पल बने, खुद टॉयलेट सफाई किया, खुद आश्रम की सफाई, सबके साथ मिलकर रहना और सबको खुद व्यवहार में लाकर और सबको संदेश दिया, वो एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बात है कि शाश्वत बातें तो सभी वेद और धार्मिक ग्रंथों में भी लिखी हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाना और उसको प्रैक्टिकली सबको खुद करके संदेश देना, वो एक बहुत बड़ी बात थी, तो वो गांधी जी ने कर दिखाया। सही है ना? यस, ट्रू। यस मैम। जी जी जी। If any student can unmute and express their response, it will be very nice for us. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं बहुत सारे। बच्चों को भी आप लेके आइए, फिर यहाँ पर भी उनको कुछ देखने के बाद ज्यादा कुछ प्रश्न उत्पन्न हो उनके हृदय में आएंगे तो जरूर पूछेंगे वो भी, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, और हाँ, किसी को पूछना है तो जरूर पूछिए, ठीक है? आई थिंक समीर सर वी शुड वाइंड अप नाउ, अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, मैम बहुत बिजी हैं, लेट हर। यस, एक्चुअली अभी एक और स्कूल की वर्चुअल टूर है, का टाइम इसीलिए उनको भी दे दिया था, तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उनको भी आज का टाइम दिया है मैंने, तो उनको भी मुझे वर्चुअल टूर देना होगा। आई थिंक हमारे बीच प्रिशा मितालिया है। प्रिशा, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ बोलिए। प्रिशा बोलो, अनम्यूट करो। I think she just wants to say hi. Okay, ma'am. Thank you very much once again, and thanks to Samir sir for arranging this for us, this virtual tour. And I look up to Samir sir to arrange a real tour to Sabarmati Ashram very soon. Sure. We will definitely work out. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Samir bhai, thank you so much. Thank you. और जरूर हम जल्दी मिलेंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you, madam. Thank you, Pratima ma'am. Thank you. Have a good. Namaste. Thank you.